Yes, I think so. In the last class, I explained you what is a motion in 1 dimension, 2 dimension, and 3 dimension, if I am not wrong. So before we start further, anyone having any doubt in that particular aspect? Yes, anyone having any doubt from yesterday's session? Okay, 1, 2, 3, 4 replies are there. अभी तक मुझे आर्या, आदित्य, देव से रिप्लाई नहीं मिला. किशिता, ओलिविया, साक्षी, please reply in the chat box. Any doubt from yesterday's session? Okay. नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट तो कह रहे हो. थैंक यू जी. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. अभी ये हमें रीड करना है, तो रीडिंग के लिए चलो आदित्य भाई, प्लीज रीड दी पोर्शन 1 by 1. एक एक पॉइंट रीड करो. सर आपने टिक किया वहां से? हाँ जी, वहां से. ओके. जनरली ओरिजिन ऑफ 3 dimensional Cartesian coordinate system is taken as क्या है सर? रेफरेंस पॉइंट. हाँ जी, हमने 3 dimension कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज किया ना. 3 dimension कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस व्हाट? x axis, y axis and z axis are mutually perpendicular, and a point where all these 3 axes are coinciding, that particular point is taken as the reference, and that reference is known as what? Origin. Exactly, are very good ji. That reference is known as origin. Yes Aditya, second point please. Okay. The coordinates x, y, and z of an object are used to describe the position of an object in this 3-dimensional system. Exactly. So if I want to mention the position of a object in a 3 dimension, I can describe it as x, y, z. This is for 3D. But suppose object is in 2 dimension, so I can represent it like this also: x, y, y, z, yeah, x, z. These are the positions of particle in 2D. अरे यार पर 1 dimension हुआ तो है ना यार, हमारे पास सारे रास्ते. या तो आप ओनली x लिखिए, या तो आप ओनली y लिखिए, या तो आप ओनली z लिखिए. दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट विल बी यूज्ड फॉर 1D, यानी कि 1 dimension. But if I am writing x, y, z, all the 3 coordinates, that means the position of an object is in 3 dimension. If I am writing only x, y, yeah, only y, z, yeah, only x, z, so that means a 2 dimension motion. Or only x, only y, and only z, 1 dimension. ठीक है, चलिए. Then next point Aditya. Okay. If one or more coordinates of an object change with time, the object is known as in motion. Exactly. कोई भी, मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल नहीं बताया था 1 2 3 और 1 2 3 ही रहता हो. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रहता हो, कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होगा. यदि कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा तो फिर ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं होगा. ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा तो फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो. If there is no change in coordinates of an object with time, object is at rest. एग्जैक्टली, ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया. चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट. If only one coordinate of an object changes with time, object is having motion in 1 dimension. एग्जैक्टली, x, y और z, x, y और z में से सिर्फ कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो ऑब्जेक्ट इज इन 1 dimension मोशन. पर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं. यस आदित्य, नेक्स्ट. हाँ जी बोलो.
सर आज सेकंड चैप्टर का नहीं था। आज कौन सा दिन है? अरे हाँ यार, सैटरडे। हाँ, नो नो प्रॉब्लम, हम कल कंटिन्यू कर लेंगे तो ठीक है। मैं भूल ही गया यार। नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू दैट ऑन संडे, मींस टुमारो। चलो, ये आर्या जी भी यार कितना लेट लेट बताते हैं। आर्या क्यों इतना लेट लेट मुझे याद करवाया? वैसे सर भी मैंने मेरा आपको मेमोरी। मैसेज किया था। क्या बात करता है वे? हाँ यार, ओके देव, ठीक है। सॉरी जी, मैंने मैसेज भी नहीं दिखा यार, क्योंकि वो पढ़ाने का फ्लो शुरू हो गया था। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, विल कंटिन्यू टुमारो, डोंट वरी। बराबर, हम सेकंड चैप्टर कल ले लेंगे, नॉट एन इश्यू। यस आदित्य भाई। Okay. When two coordinates of an object change with time, object is having motion in two dimensions. Example: 0 bracket 0 comma 0 comma 0 bracket close is to q 2 5 आदित्य and भाई, 0. एक गलती हो गई बोलने में। ये जीरो नहीं है पहला, ये ओ पॉइंट है। ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, और फिर अंदर कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो 0,0,0 बराबर। यस, 1 सेकेंड। Okay. फिर से एक बार रिपीट। Okay. Example पूरा repeat करूँ? हाँ, व्हेन टू, वो पॉइंट फिर से एक बार। Okay. When two coordinates of an object change with time, object is having motion in two dimensions. Example: O bracket 0 comma 0 comma 0 is to Q 2 5 and 10 2 5 and 0. ओके, 2 5 एंड 0, 2 5 0। सो देखिए, ओ पॉइंट जो है उसका पोजीशन क्या है? 0,0,0, मतलब वो ओरिजिन पर है। But as you can see, after some time, the position of an object is point Q. And what are the coordinates of point Q? 2 5 0। मतलब आप देख सकते हो कि उसका x और y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, बट क्या z कोऑर्डिनेट चेंज हुआ? आंसर इज नो। सो सिर्फ 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, मतलब ऑब्जेक्ट इज इन 2 डायमेंशन। यस, देन नेक्स्ट। If all the ये क्या है सर? 3 है. If all three coordinates. Okay. If all three coordinates of an object change with time, object is having motion in 3 dimensions. Example: O bracket 0 comma 0 comma 0 is to R bracket 1 4 and 9. एग्जैक्टली। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट जो था वो पॉइंट ओ पर था, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 थे, लेकिन अब वो 3 डायमेंशन में आ गया। देखिए, क्योंकि हर एक उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, एक्स भी चेंज हो गया, वाई भी चेंज हो गया, जेड भी चेंज हो गया। so that means this is a motion in a 3 dimension. all of you understood this? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ओके, चलिए देन नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वॉलेंटियर, यस नक्षत्र, नेक्स्ट डेफिनेशन। Sir, please change the ratio. ओके जी, लीजिए बस। चल, For the same motion of object, observations are different for different reference. नक्षत्र भाई, ऊपर का एक पॉइंट रह गया। Sorry, sir. Frame of reference. Under which situation and from which place an observer takes observation, it is called frame of reference.
For the same motion of object, observations are different from different reference frame. ऑब्वियसली ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही एक्सप्लेन करवा दिया था ना यार। याद आया कौन सा एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ? किसी को याद आया? कौन सा एग्जांपल मैंने दिया था आपको रेफरेंस के लिए? अरे यार, आप बस में बैठे हो, आपका फ्रेंड बस स्टॉप पर खड़ा आपको सी ऑफ करने आता है, बस चलने लगती है, बस चलने लगती है, आप फ्रेंड को देखते हो तो फ्रेंड ऐसा लगता है कि पीछे पीछे जा रहा है, मतलब वो मोशन में लग रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली तो मोशन में आप हो। अगर फ्रेंड आपका बस स्टॉप पर खड़ा हुआ फ्रेंड अगर आपको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आप मोशन में हो, वो स्टेडी है, ठीक है। तो देखिए रेफरेंस कौन है उसके हिसाब से आपको डिपेंड। अगर आप फ्रेंड को देखते हो तो ऐसा लगता है फ्रेंड पीछे पीछे जा रहा है, वो मोशन में। लेकिन फ्रेंड अगर आपको देखेगा तो वो पता चलेगा ना, अरे बस मोशन में है लल्लू, मैं मोशन में नहीं हूँ, तू मोशन में है, इसलिए तू मोशन में जा रहा है, मूव हो रहा है, तेरे पोजीशन चेंज हो रहे हैं। मैं तो बस स्टॉप पर खड़ा हूँ या तुझे टाटा सी ऑफ करने आया हूँ, मेरे को थोड़ी कहीं जाना है, तू जा। यानी मैं रेस्ट पर हूँ, तू मोशन में। ठीक है, चलिए ये दोनों केसेस समझ में आए। फिर थोड़ी देर बाद आपको भूख लगी, आपने लगेज में से कुछ वेफर्स वेफर्स के स्नैक्स वगैरह लिया, तो आपका लगेज जो था, बैग जो था, वो तो आपको अगर देखोगे तो वो तो आपको स्टेशनरी लगेगा। सो डिपेंड करता है कि रेफरेंस क्या है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। आप खुद रेफरेंस हो, क्या सामने वाला जो बस स्टॉप पर खड़ा आपका फ्रेंड है वो रेफरेंस है, या उसके बाजू में जो ट्री है जो स्टेशनरी रहता है हमेशा वो रेफरेंस है। कहाँ से रेफरेंस है, आप सिलेक्ट क्या करते हो एज अ रेफरेंस, वो डिपेंड करता है। लेकिन मोशन के लिए रेफरेंस का होना जरूरी है, रेफरेंस के बिना मोशन कभी भी नहीं हो पाएगा। अब सपोज कीजिए ना यार, ये बुक कलेक्शन का आपको रखा था राउंड मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो बुक कलेक्शन के लिए मैंने आपको एड्रेस दिया। अब एड्रेस में कुछ एक लैंडमार्क तो होना चाहिए ना। हाँ, हम लैंडमार्क देते हैं, वो लैंडमार्क क्या है, रेफरेंस है ना। अभी देखिए मेरे घर पर आना हो मान लीजिए, तो रेफरेंस मैं आपको क्या दूंगा, बिलाबॉन्ग स्कूल के सामने। तो ये बिलाबॉन्ग क्या हुआ यार, ये रेफरेंस हुआ। हाँ, अगर मैं आपको सीधा बता दूं कि आप अवध में आइए, तो अवध पूरे दुनिया में कितने होंगे यार, बहुत सारे होंगे ना, पर अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अपोजिट टू बिलाबॉन्ग, तो आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ ये रास्ता और ये स्कूल तो एक ही है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो हर एक मोशन के लिए रेफरेंस का होना बहुत 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 जरूरी है। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Sir, हाँ जी, बोलिए। sir, it means the observer is a reference. नहीं जी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऑब्जर्व जो ऑब्जेक्ट है वो खुद रेफरेंस भी हो सकता है या दूसरा भी रेफरेंस हो सकता है। मैंने नहीं बताया आपको अभी वो कि आप फ्रेंड को सी ऑफ, फ्रेंड आपको सी ऑफ करने आ रहा है, बराबर देवम भाई, तो कहीं पर जा रहा है, बोला चलो मेरा कैंप वैम्प वगैरह है, तो यार ये तो बहुत स्ट्रेस वेस हो गया, मैं तो जा रहा हूँ गोवा घूमने, यार बहुत हो गया यार, ये तो कंटा लग। तो आपका फ्रेंड आपको रेलवे स्टेशन पे सी ऑफ करने आता है, बराबर। आप खुद रेफरेंस हो, ठीक है, आप खुद रेफरेंस हो, आप खुद रेफरेंस हो, तो क्या होगा, देखिए आपको ऐसा लगेगा मैं तो ट्रेन में बैठा हूँ, मेरा फ्रेंड पीछे 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 चला गया, ऐसा लगेगा ना देवम भाई? Yes, sir. बट अब आपका फ्रेंड रेफरेंस में हो, वो आपको देखेगा तो ऐसा लगेगा, अरे देवम तो आगे ट्रेन में आगे 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 जा रहा है, आगे ना। Yes, sir. लेकिन मैं अगर रेफरेंस हूँ और मैं कहाँ पर बैठा हूँ, मैं तो मस्त मून पर जाकर बैठ के आप दोनों को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, मैं मून पर हूँ यानी स्पेस में हूँ, स्पेस में मस्त, मैं तो घूमने गया हूँ बाहर, आज कुछ तूफान नहीं करते, मैं स्पेस में घूमने गया और स्पेस से टेलीस्कोप थ्रू मैं आप दोनों को देखता हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, भाई आप दोनों मोशन में होंगे ऐसा मुझे लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट तो कंटिन्यूअसली होता ही रहता है ना देवम भाई, है ना? समझ में आया कि नहीं? Yes. तो कौन रेफरेंस है ना, वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है वो खुद ही रेफरेंस हो, नहीं जी, सॉरी, कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं हम, ठीक है ना। चलिए फिर
क्लियर है क्या? अभी भी और कोई डाउट है क्या किसी को? है डाउट तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर नए कंसेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आप लोग मुझे रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। मीनवाइल मैं एक नया सिचुएशन आपको समझाता हूँ, नया केस समझ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आप कोई नया स्टेट, नया कंट्री इनफैक्ट चलिए कहीं घूमने गए हो, नए लोकेशन पर गए हो, बरा, और गूगल गूगल कोई आपके पास हेल्प में नहीं है, और आप आउटसोर्स के हेल्प से कहीं घूमने मतलब टैक्सी वाला है, रिक्शा वाला है, उबर ओला ब्ला 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 ऐसे कोई हेल्पिंग में है, और आपको ऐसा फील हुआ कि यार इसने मुझे उल्लू बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने जब मेरे रिलेटिव्स को पूछा था कि ये जगह से एक दूसरी जगह पर जाने के लिए इतना टाइम लगता है, 10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये टैक्सी वाले ने, कैब वाले ने, ऑटो वाले ने मुझे 20-25 मिनट घुमा के मुझे पहुंचा। क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या? अभी कभी भी आपको ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है क्या? हुआ है तो प्लीज शेयर कीजिए, तो आपका ये नया केस समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। किसी को नहीं पता हुआ है? अरे वाह, तो बस शेयर कीजिए ना देवम भाई, क्या हुआ है बताइए। सर मीन्स जो मतलब एग्जाम्पल कोई और मेरा फ्रेंड एग्जाम्पल तो लॉन्ग लॉन्ग रूट से जाता है और मैं शॉर्ट रूट से जाता हूँ, तो ऐसा टाइम चेंज हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी आपको एक मस्त एग्जांपल बताता हूँ। देखिए स्क्रीन पर पेन, पेन किधर गया? पेन आ जा, आ अच्छा है मेरी बात सुनता है। देखिए क्या स्क्रीन के ऊपर आपको पॉइंट ए दिखा और स्क्रीन बी के ऊपर आपको पॉइंट बी दिखा? हम सब अभी कहाँ पर है? पॉइंट ए पर, और हम सब ट्रैक पर ट्रैकिंग करने निकले हैं। बाय द वे ट्रैकिंग, इट्स टाइम टू ट्रैकिंग। यस भाई, अच्छा मौसम है, मॉनसून सीजन है, काफी लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं। चलिए हम ट्रैकिंग पे निकले। हाँ, आपके गाइड ने आपको इन्फॉर्म किया ट्रैक ए पॉइंट से ट्रैक बी पॉइंट पर हम मिलते हैं, ठीक है? आपने बोला यस सर, ओके, आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे। फिर ये नक्षत्र भाई बोलता है अरे क्या यार, सर को फॉरवर्ड करने का छोड़ दो, हम अपने रूट बनाएंगे और अपने रूट से जाएंगे, मजा आएगा। हाँ, तो 2-3 लोग बोलते नक्षत्र के साथ आगे, हाँ 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 चलो यार मजा करेगा, क्यों आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन व्यू पे है ना, डर के आगे जीत है, चलिए अब जाते हैं हम। तो 3-4 लोग नक्षत्र के साथ जुड़ गए, ठीक है? तो वो लोग जा रहे इस बात से, देखिए हाँ ये पहुंचे क्या? ये नक्षत्र भाई ने नया रूट निकाला, घूम के जाते हैं क्या सीधा सीधा नहीं, लेकिन गाइड बोलता है, बाकी के लोग तो गायब हो गए, नक्षत्र लेके चला गया, गाइड को तो पता ही नहीं। गाइड को तो ऐसा पता है मेरे पीछे पीछे सब लोग आ रहे हैं, तो गाइड लेके जाता है अपने स्टैंडर्ड रूट से, यानी एकदम सीधा रास्ता। ये रहा, ये रहा। देवम भाई बोलता है अरे यार, देवम भाई बोलता है मेरे पास तो नया उससे भी अच्छा रूट है, पूरा है ना, जंगल से जाता है, वाटरफॉल से जाएगा, मजा आ जाएगा। देवम भाई खुद के रास्ते से जाता है, वो भी 3-4 फ्रेंड्स को लेके जाता है। तो देवम भाई ये रास्ते से जाएगा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके ये पहुंचा। देखिए हमारे पास 3 रास्ते, कौन कौन से जी? ये रास्ता ए, रास्ता बी, और ये रास्ता सी। पाथ ए जो है ना वो नक्षत्र ने सिलेक्ट किया, पाथ बी जो है वो गाइड ने सिलेक्ट किया, और पाथ सी जो है वो देवम ने सिलेक्ट किया, बराबर। और आप लोग सारे ये स्प्लिट हो गए, कुछ लोग नक्षत्र के साथ गए,
बराबर, माउंटेन क्लिफ्स के वगैरह से थ्रू जाएगा ये रास्ता। पाथ बी जो है वो गाइड का रास्ता, एकदम सीधा साधा, कोई आपको परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा पॉइंट। पाथ सी जो है वो जंगल से जाएगा, वाटरफॉल हो से जाएगा, सब कुछ ऐसा आपको ग्रीनरी नेचर थ्रू मिलेगा। और मुझे ये बताइए ना, अरे ए और बी तो रिपीट हो गए ना, चले लोकेशन चेंज कर दिया जाए इंस्टेंट। ये पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है। चलिए, तो इसमें आपको क्या समझना है यार, इसमें आपको क्या समझना है? इसमें आपको ये समझना है कि मैं कोई भी पाथ लूं, कोई भी पाथ लूं, अरे पर हर एक पाथ में मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन कौन सा है? P and Q. पी एंड क्यू, बराबर ना? ऑल ऑफ यू, Yes. ऑल ऑफ यू, ओके ओके, थैंक यू। चलो, ऑल ऑफ यू फॉलोड इट। क्या पी एंड क्यू इनिशियल और फाइनल पोजीशन है तीनों के तीनों पाथ के लिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। पर इसमें से अभी मुझे कंफ्यूजन, क्योंकि इसमें ना दो टर्म्स छुपे हैं, मोशन के रिलेटेड दो टर्म्स छुपे हैं। एक है पाथ लेंथ, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। किसी को आइडिया है कि पाथ लेंथ कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? एनीवन? क्योंकि 9th में ये सब कुछ आ चुका है मेरे ख्याल से, 2 साल हुए, ज्यादा भी नहीं हुआ। गजनी का प्रॉब्लम थोड़ा मुझे है, आप लोगों को तो नहीं होगा। कोई बता सकता है इसमें से पाथ लेंथ कौन सा होगा और इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? एनीवन? Sir, in this displacement of an object from P and Q. एबीसी में से मुझे आंसर चाहिए देवम भाई। एबीसी में से आप किसको पाथ लेंथ कंसीडर करोगे कुछ, और किसे डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करोगे? ओके ओके, एक आंसर मुझे करेक्ट मिला है बाय द वे, लेकिन एक आंसर तो एग्जैक्टली अपोजिट आंसर मिला है मुझे। लगता है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे होंगे आपको, क्योंकि उल्टा चश्मा उसमें आता है, तो उल्टा आंसर मुझे दे दिया आप लोगों ने। कोई नहीं यार, किसी को नहीं पता पाथ लेंथ कौन, डिस्प्लेसमेंट कौन। आदित्य भाई, पी एन क्यू तो इनिशियल फाइनल पोजीशन है, वो तो नहीं चाहिए मुझे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ए और सी जो है ना, ए और सी, यानी नक्षत्र वाला पाथ और देवम भाई वाला पाथ, उसे पाथ लेंथ कहेंगे, उसे पाथ लेंथ कहेंगे। बट ये जो गाइड वाला पाथ था ना, उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सर ऐसा पार्शलिटी क्यों, हम दोनों ने अलग रास्ते लिए, यानी हमारा पाथ लेंथ हो गया, गाइड का रास्ता तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसा पार्शलिटी क्यों? अरे इट्स नॉट अबाउट पार्शलिटी। What do you mean by displacement? Displacement is nothing but you join the initial and final position in a straight line. Another definition is shortest path in a straight line is known as displacement. Shortest path in a straight line is known as a displacement. All of you understood the concept or understood the difference between path length and displacement? Please let me know. पाथ लेंथ तो सब होते हैं, लेकिन अब वो पाथ लेंथ ऐसा होगा जिसमें आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देते हो, स्ट्रेट लाइन में, और जो भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया कौन सा पाथ लेंथ कौन सा डिस्प्लेसमेंट? अभी क्लियर क्या सबको? Yes, sir. with this example, तो ये एग्जाम्पल से नक्षत्र भाई को और देवम भाई को क्या सीख मिली? खुद के रास्ते मत बनाइए, ज्यादा टाइम लगेगा, रास्ते में कुछ और भी परेशानी हो सकती है। गाइड जो होता है, डेफिनेटली उसको गाइड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन में हमें गाइड करता है और आपका रास्ता जो है वो इजी करके देता है, शॉर्टेस्ट पाथ बनाता है। ठीक है ना? चलिए, अभी पीछे जो भी डिफरेंस के पॉइंट्स है ना, वो हम रीड करके समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब नया वॉलेंटियर चाहिए मुझे।
तो वेदांत भाई, प्लीज रीड द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. यस. Path is the total distance traveled by an object. Displacement is the change in position in a particular direction. हाँ, ये डेफिनेशन है, चेंज इन पोजीशन और इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा बराबर, पूरे वैल्यूज और कैलकुलेशन के साथ. तो पाथ लेंथ क्या होता है? वे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. कोई भी पाथ लो, पर उस पाथ का जो आप लेंथ कवर करोगे, डिस्टेंस कवर करोगे, डिस्टेंस दैट इज नोन एज पाथ लेंथ. अरे भाई, उसी पाथ का आप शॉर्टेस्ट पाथ ले लीजिए, हाँ, शॉर्टेस्ट रूट पकड़िए, उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे. दैट्स इट. चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट. Path length is a scalar quantity. Displacement is a vector quantity. और सर, मेरे को तो यही नहीं पता कि स्केलर क्या वेक्टर क्या. किसी को पता है? थोड़ा थोड़ा तो मुझे याद है, पढ़ा था टीचर ने, नाइन्थ में कुछ बोला था, पर सर 2 साल हो गए. मुझे तो ये नहीं पता कि 2 महीने पहले मैंने क्या पहना था और क्या खाया था पार्टी में. अब 2 साल पहले की बात करते हो. 2 महीने पहले भी क्या सर, 2 दिन पहले मैंने क्या खाया था वो मुझे याद नहीं. अब 2 साल की बात करते हो. इज इट सो? ऐसा है क्या? सर हाँ जी, बोलिए जी प्लीज. सर स्केलर क्वांटिटी में लेंथ मास और वो लेंथ मास आता है, और वेक्टर में एक्सेलरेशन और फोर्स वगैरह वगैरह वगैरह. बट ये तो आपने मुझे स्केलर और वेक्टर के एग्जांपल्स बताए देवम भाई. आई वांट व्हाट इज द मीनिंग, what is the meaning of scalar quantity and a vector quantity? What is the distinct or difference between scalar and vector quantity? sir scalar means one type of quantity and vector means two or more types of quantities. नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी. आर्या का सर आंसर करेक्ट है. आर्या, यस यस यस. मैं वही बता रहा हूँ, आर्या का आंसर परफेक्ट है. वेदांत Sir, का आंसर scalar पूरा quantity has अपोजिट है. magnitude ओके. and vector quantity has both magnitude has direction also. ओके. पर मुझे नहीं समझ में आया ये क्यों ऐसा. देखिए, आर्या का पहला आंसर था वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये करेक्ट. वेदांत का पहला आंसर था स्केलर क्वांटिटी नीड्स ओनली डायरेक्शन, नहीं, दैट्स रॉन्ग. फिर आदित्य क्या था, स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड, दैट्स करेक्ट. फिर वेदांत लिखता है वेक्टर नीड्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, वो भी करेक्ट. फिर आर्य का फिर से आंसर रॉन्ग है कि स्केलर नीड्स डायरेक्शन. फिर आदित्य का वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में भी. अरे यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ. स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड मतलब अरे वैल्यू यार, वैल्यू. जबकि वेक्टर मीन्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो नहीं समझ में आया, कुछ पता नहीं चला, कुछ भी पता नहीं चला. कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ. चलिए, मैं अभी आपको बताता हूँ इसका एग्जाम्पल. अरे आर्या, अभी कितना टाइम हुआ? सर 8:44. अच्छा जी. फिर आपकी 2 फ्रेंड को बता. स्वरा, कितना टाइम हुआ? 8:44. ये तो है, इसने बोला ना, आई एम BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. उसने जो बताया वही मैं बताऊंगी. चले ठीक है. साक्षी जी, कितना टाइम हुआ? 8:44. देखिए है. चले, चीटिंग करते हो यार आप तो. चलिए फिर रिया, कितना टाइम हुआ? रिया जी, कितना टाइम हुआ अभी? ये तो गर्ल्स यूनिटी होगी, सब लोग 8:44 बोलेंगे.
तो देखे यार, कुछ समझ में आया क्या? कोई भी, अब ये थोड़ी जरूर है कि ये तीनों या चारों लड़कियां क्या एक साथ बैठ के पढ़ रही कि नहीं, कोई अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग उनके एड्रेस होंगे। पर क्या ऐसा होता है कि आज मांजलपुर में अभी 8:44 हुआ है ना, तो अलकापुरे में अभी 9:40 होगा, वासना रोड पर होगा तो 10:30 होगा। ऐसा होगा क्या? मतलब मैं अभी जा रहा हूँ वड़सर रोड से इलोरा पार्क साइड, जैसे मैंने इलोरा पार्क साइड टर्न मारा ना सर, 8:44 से सीधा 9:30 हो गया टाइम। ऐसा होता है क्या? क्या डायरेक्शन बदलने से टाइम का कभी वैल्यू बदलता है क्या? आंसर इज नो। तो ऐसे क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पर डिपेंड करते, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते, उससे स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। फिर अगर देखिए कोई पर्सन है जिसका मास 60 kg है, हाँ, वडोदरा में होगा तो 60 kg, और गोवा में जाएगा तो 100 kg, यूएसए में चला जाएगा और तो 40 kg। ऐसा होता है क्या? नहीं जी, मास तो मास ही होता है, कहीं पर भी वो घूमे मास तो कांस्टेंट रहता है, मास स्केलर क्वांटिटी। बट आप कोई रास्ते पे जा रहे हो, नया रूट है एकदम, हाँ, गूगल बाबा का हेल्प ले रहे हो, नेविगेशन ले रहे हो आप, वो बोलता है टेक राइट टर्न फ्रॉम 300 मीटर, ऐसा कुछ बताते हैं। 3 मीटर के बाद अब लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, रिवर्स, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये क्या हुआ यार? 300 मीटर के बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो 300 वैल्यू हुआ यानी मैग्नीट्यूड, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, बड़ा 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 जो भी डायरेक्शन है वो आपका पर्टिकुलर पाथ का डायरेक्शन बताता है, यानी इसमें दोनों आते हैं। इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मैंने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स दिया, मैंने कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स दिया, फोर्स मूव करने से वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ। मतलब कोई चेयर है मान लीजिए घर पे, उस चेयर को मैंने थोड़ा सा पुश किया तो चेयर मूव हो गया, बट कौन से डायरेक्शन में मैंने फोर्स दिया जिससे वो पुश हुआ, वो भी तो मैटर करता है ना यार। तो ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी काउंट होगा। नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड, only magnitude that is a scalar, as well as magnitude and direction which is a vector quantity. Yes or no, please confirm. Yes, Vedant, last point please. It is always positive. Displacement can be positive, negative, or zero. Exactly. कोई भी यार सुबह सुबह जॉगिंग करने जाएगा, वे तेरे को पता है आज मैंने 2 किलोमीटर आज फॉरवर्ड गया, फिर 2 किलोमीटर वापस बैकवर्ड आया, तो मैंने तो 0 डिस्टेंस डाल दिया। ऐसा थोड़ी होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस ही होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस का ब्लड पाथलेन का ब्लड ग्रुप क्या होता है? बी पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता। तो पाथ लेंथ हमेशा रह जाएगा क्या? पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम ये भी सीखेंगे डिटेल में वैल्यूज के साथ। डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। So that completes the explanation related to path length and displacement in detail। मैंने आपको समझाया along with the examples, जितने भी examples हो सकते थे ये मैंने आपको समझाया। Now Vedant bhai, please stop the recording, and it's a general